ڈاکٹر شزرا مجھے یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ نون لیگ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. کیا یہ آپ کو کوئی وقتی ابال رکھ رہا ہے یا نون لیگ اس بیان کو کچھ سیریس لے رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جسٹ لائک اے اسٹیٹمنٹ, کوئی اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے جس وقت الیکشنز ہوتے ہیں تو جنرلی الیکشنز کے دوران مختلف پارٹیز اپنا مینیفیسٹوز لے کے پبلک کے پاس جاتی ہیں اور سیاسی تقریریں بھی ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے اور کئی دفعہ جوش خطابت کے اندر بہت ہارش باتیں بھی ہو جاتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کیونکہ ایک الیکشنز کی بیک گراؤنڈ میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, AJK میں الیکشنز ہو رہا ہے اور اس الیکشنز کو پیپلز پارٹی جس وقت GB میں الیکشنز ہوا پیپلز پارٹی نے کچھ فتح حاصل کی, ہم نے فوری طور پہ ان کو مبارکباد بھی دی اور انہوں نے اس الیکشن کو تسلیم بھی کیا. لیکن اب جب وہ کچھ سیٹیں ہار گئے تو انہوں نے یہ ایک اپنی سیاست چمکانے کے لیے بیانات دینے شروع کر دیے کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی, الزامات لگانے شروع کر دیے. ان کو اپنی جو ہار ہے وہ تسلیم کرنا ذرا مشکل ہوا ہے اور اسی وجہ سے اس قسم کے سیاسی بیانات دیے جا رہے ہیں جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ کچھ زیادہ بھی ہو گئے. لیکن بہرحال ہم اسی کانٹیکسٹ میں ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی جماعت کو جس وقت اس کی ہار ہو جاتی ہے تو عوام کا فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے. عوام نے پرفارمنس دیکھتے ہوئے, عوام نے دیکھتے ہوئے کہ ان کی حکومت تھی پہلے, انہوں نے کیا ڈیلیور کیا, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام نے اپنا فیصلہ سنایا. اور ناٹ اونلی ناؤ بٹ ڈیورنگ الیکشن بھی یہ پتہ چل رہا تھا, جس وقت میاں صاحب نے جلسے کی اس میں عوام کا جوش, اس کا جذبہ دیکھتے ہوئے پتہ چل رہا تھا کہ PMLN کی جو خدمت ہے, PMLN کا جو ڈیلیوری ہے, PMLN نے جس طریقے سے پرفارمنس کی ہے, اس چیز کو ٹھیک, اوکے عوام ووٹ دینا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ ایک ہی وقت میں آپ کے کیبنٹ کے منسٹر ہیں, انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب, ان کا بیان آتا ہے کہ یہ تو سسٹم ہی فیل ہو گیا ہے, 18-20 گھنٹے بھی کام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. پھر آپ کے اتحادی ہیں ان اے وے, پیپلز پارٹی بھی ظاہرہ ایک پروسیس کے ذریعے وہ بھی ان کانسٹیٹیوشنل آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ دھاندلی بھی کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ گولی بھی چلاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ زبردستی الیکشن جیتتے ہیں. یہ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ایسے میں PMLN کو کچھ اندازہ ہو رہا ہے؟ پھر میڈیا کے کچھ لوگ جو ہے وہ 6 مہینے کے نوٹسز دے رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ جی 6 مہینے اگلے بڑے امپورٹنٹ ہیں. سو کچھ ایسے میں بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, کچھ فیل ہو رہا ہے کہ کوئی پریشر بڑھ رہا ہے کہیں سے؟ دیکھیے محسن نقوی صاحب نے جو بات کی وہ ان کا ایک پرسنل اوپینین تھا جو کہ انہوں نے ایک بزنس مین کے فورم کے اوپر جا کے دے دیا. ان کا اوپینین ہے, اگر وہ اس چیز کے اوپر ڈیبیٹ چاہتے ہیں, اگر وہ سیریس ہوتے اس معاملے کے اوپر تو پھر وہ اس بات کو پارلیمنٹ میں لے کے آتے, اور ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ میں اگر اس قسم کا کوئی ایک میجر ری تھنک کرنا ہو تو وہ پارلیمنٹ ہی اس کا رائٹ فورم ہے. تو اس وقت ہم ڈیبیٹ کر کے اس کے پروز اینڈ کونس کے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا ٹھیک, فورم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. سو آپ کے خیال میں لیکن وہ سنجیدہ نہیں ہے اس لیے انہوں نے جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کو ایڈریس کیا, ورنہ کیبنٹ میں بات کرتے؟ اگر وہ سنجیدہ ہوں گے تو وہ کیبنٹ میں آئیں گے, وہ پارلیمنٹ میں یہ ڈیبیٹ لائیں گے اور پھر ڈیفینیٹلی تمام پارٹیز جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں وہ اپنا ویو پوائنٹ دیں ٹھیک, گی کیونکہ اوکے, یہی عوامی مینڈیٹ ہے, یہی فیئر عوامی انف, نمائندے ہیں. پوائنٹ اگین. جی رضا ہارون صاحب, اس اسٹیٹمنٹ سے کیا مطلب لیا جائے؟ کیا پیپلز پارٹی ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کی تیاری کر رہی ہے یا اس کا پارٹ بن سکتی ہے ٹک ٹاک کے ذریعے؟ ٹک ٹاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ the clock is now ticking, اور جو کچھ بھی ہنی مون پیریڈ تھا یا جو آپ کے پاس 3-4 سال کا وفاقی گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ میں جو ٹائم رہا ہے اس کے لیے ٹک ٹاک کہا جا رہا ہے. اور ٹک ٹاک میں جو سمجھا ہوں کہ جو حالات ہے اس وقت, دیکھیں عادل بھائی, ہم آنکھیں بند کر کے اور شتر مرغ کی طرح گردن جو ہے ریت میں دبا کے اگر بیٹھ جائیں اس کا تو کوئی حل نہیں ہے, کوئی علاج نہیں ہے. لیکن اگر حکمران کو یہ اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ عوام غربت, مہنگائی, بے روزگاری, انرجی کاسٹ, بلنگ کی کاسٹ, اشیاء خورد و نوش میں جو ہوش روپے اضافہ ہو گیا ہے, اس سے ایک عام خاندان کی زندگی میں کتنا بڑا بدلاؤ آ چکا ہے, کتنے پریشر میں ہیں, اس کے اوپر جو ہماری سروسز ہیں, جو آج کل فیول کاسٹ کے اندر جو چل رہا ہے کہ کس طریقے سے روزانہ یہ فیول کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور جب اس کو کم ہونے چاہیے کم نہیں ہوتی. یہ تمام شکایت اگر آپ دیکھیں, اس کے بعد آپ اس کو بڑا غور سے دیکھیں کہ محسن نقوی صاحب وفاقی انٹیریئر منسٹر ہیں, اس کے علاوہ وہ اثر شخصیت سمجھے جاتے ہیں
वो जिस फोरम पे खड़े हुए थे, इकोनॉमिक समिट, यानी मुल्क का इंडस्ट्रियलिस्ट, मुल्क का बिजनेस कम्युनिटी, मुल्क के चैम्बर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है हमारी सोसाइटी का जो बराह रास्त हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है। उस फोरम को उन्होंने चुना, वजह उनको खुद ही पता होगी क्यों चुना, और वहां जो उन्होंने बात की है उस बात को फिर रेजोनेट किया गया है। अगर आप ख्वाजा आसिफ के बयान देखें, उसके बाद वो भी फेडरल मिनिस्टर हैं डिफेंस के, उन्होंने बहुत सारी बातों से एग्री किया है। उन्होंने भी इस बात को कहा है कि स्टेल हो गया है, रीसेट की जरूरत है, और बहुत सारी अब ये जाहिर है कि हमें किस तनाजुर में सब ये बातें हो रही हैं। इसके अलावा अगर आप अलीम खान साहब को सुने, यानी 3 विफाकी वुज़रा उनकी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बयानात की, तो वो देखे ना जिस फोरम पे वो बैठे हैं आदिल भाई, वो वहां पे बहैसियत फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर इन्वाइट हुए थे। या ख्वाजा आसिफ साहब बात करते हैं, उनको सुनते हैं, तो सीनियर लीडर हैं PMLN के, वो वजीर दिफा इंपॉर्टेंट। अलीम खान साहब अगर बात करते हैं तो वो फिर वफाकी कैबिनेट का हिस्सा है। मुस्तफा कमाल साहब अगर ये बात करते हैं तो वफाकी वजीर सेहत हैं। तो ये तो वफाकी कैबिनेट के 4 बड़े वज़रा के तो मैंने नाम ले दिए। तो अगर इसको हम सिर्फ ये कह लेंगे कि जी ऐसा कुछ नहीं है उनके साथ, मैं बड़ी माजरत के साथ अपनी बहन के साथ, क्या बड़ा इसको आसानी से अगर आप रद्द कर देंगे, ठीक है हल पे बात हो सकती है कि जो उन्होंने हल कहा सूबों का, शायद वो मुनासिब बात ना हो, जो वो बात करें एडमिनिस्ट्रेशन वो मुनासिब बात ना हो और हल कुछ और निकले। लेकिन ये हकीकत तो है ना कि आज मुल्क का निज़ाम जो है वो कदरे मफलूज होकर रह गया। अगर आप इस अपने निज़ाम में से मार्का हक की कामयाबी, बुनियादी मरसूख की कामयाबी और तारीखी फतह, जिसका कि मरून मिन्नत है अपनी अफवाज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब के, अगर हम उसको एक तरफ रख दें तो हमारे पास तो, और अगर डिप्लोमेसी में भी आप देखें ना कितना आगे वो चल रहे हैं, जिसका जिक्र नकवी साहब ने भी किया, अगर हम उसको एक मिनट के लिए गवर्नमेंट की जो गुडविल है उसमें से निकाल दें तो फिर बचता क्या है? मुझे बताएं ना। पर जो मैं आप आता हूँ क्योंकि इसके बाद वो अगला टॉपिक फिर डिस्कस नहीं, मैं सिर्फ एक बात आपको एंड कर दूं। हाँ। अगर तो ये सारे हालात इस मुल्क में नहीं है, अगर ये कशमकश और ये मुश्किल हालात और इस वक्त मुल्क के सफरा तफरी से नहीं गुजरा, सियासत हो रहा है जो आज जो कश्मीर में हो रहा है, ये अगर हम इससे हम आंखें बंद कर लेंगे ठीक, और इसके ऊपर हमारा अगर ये मौक़िफ़ होगा कि सब कुछ ठीक है और पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए, तो पार्लियामेंट में डिबेट हमने देख ली है कैसी होती है यार आदिल भाई। ठीक, पार्लियामेंट तो वो फोरम ही नहीं है। तो फिर कुछ इस तनाजुर में समझता हूं कि लेकिन आप जिस तरफ मैं जरा इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब के बयान को लार्जर कॉन्टेक्स्ट देखा जाए, नेशनल कॉन्टेक्स्ट देखा जाए। मिसाल तो अब आप घर भेजना चाहते हैं इनको, अगर ये घर भेजना चाहते हैं पीपल्स पार्टी, हुमायूं मोहम्मद साहब, आपको लगता है कि ये उल्टी गिनती की थ्रेड ओरिजिनल है, बिल्कुल जेन्युइन है? और अगर ऐसा है तो पीटीआई उनके साथ जो चाहती है, पीटीआई काफ़ी अरसे से इस गवर्नमेंट को घर भेजना, क्या साथ देगी, साथ चलेगी? और क्या आप दोनों मिलकर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ वो करेंगे जहाँ इतना जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गए, जिसका हवाला खुद रज़ा हारून साहब भी दे रहे हैं कि भाई वाकई सिवाय बुनियानुल मरसूस की और कामयाबी है क्या इनके पास फॉरेन पॉलिसी की? ये जो डायलॉग शायद देखिए इस तरह है कि ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल अर्ली 2022 में इमरान खान ने एक स्पीच की थी जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा साहब को कहा था कि अगर आपके पास कोई गेम प्लान है जो आप करना चाह रहे हो तो मुझे बता दो, मैं पीछे हट जाता हूँ। लेकिन अगर आपके पास गेम प्लान नहीं है तो आप मईशत नहीं संभाल सकोगे, आप नहीं कर सकोगे। अच्छा, उसके बाद जब वो हटा दिया गया तो पार्लियामेंट से आवाज़ आई 10 अप्रैल 2022 वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। और दसो जी पुराना पाकिस्तान, मज़ा आया? आपने दसो जी जल्दी कह दिया, सुना दसो ना, मज़ा आया उसका। देखिए स्टॉक इंडेक्स के बारे में कहा गया, डॉलर के बारे में कहा गया, वो ऊपर हो गया, वो नीचे हो गया। आज बताओ क्या है? आज जो सबसे मजबूत तरीन मिनिस्टर है कैबिनेट का, उसने उठ के कहा है कि ये सिस्टम बढ़ गया है, ये आगे नहीं चल सकता। और नाम लेकर के यार, अगर आपका प्राइम मिनिस्टर 18 घंटे के बजाय 19 घंटे काम करे, उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा मरियम नवाज़ को बग़ैर नाम लिए कि आप लैपटॉप दो, टैबलेट्स दो, जो मर्ज़ी दो, नहीं फ़र्क पड़ता। बात वो गलत नहीं कर रहा, जो उन्होंने वो चीज़ें गिनवाई है वो गलत नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। PMLN की हमने तकरीरें सुनी कि ये वाहिद हमारी पार्टी है कि जिसके पास हमारे ये एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट है, फलाना एक्सपर्ट है। किधर गया वो? अच्छा, उसके बाद ये याद रखें कि इसी दौरान में इमरान खान की एक और वो थी, उसमें उन्होंने कहा था कि देखो अगर आप
किसी भी सिस्टम के अंदर चोरों को लगा दोगे ना, वो सिस्टम नहीं चल सकता। और एक और बात याद रखना, जो जुल्म का निज़ाम होता है ना, ये अल्लाह ताला का उसूल है, जो जुल्म का निज़ाम होता है वो नहीं चल सकता। कुफर का निज़ाम चल जाएगा, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। पिछले 4 साल से जो जुल्म हो रहा है, इस निज़ाम ने तो गिरना ही गिरना था। कब गिरना था वो आज पता चल गया है। अब आप पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तरीके, देखिए हमने कुछ नहीं किया, हम तो कोशिश कर रहे हैं अपनी सर्वाइवल की। क्यों? हमारे साथ जितना जुल्म पीटीआई के साथ हो रहा है इतना नहीं। अभी हामिद मीर साहब की एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या उसमें थे, उन्होंने कहा मैं गिना के देता हूँ 15 तो मैं गिना देता हूँ बड़े एंकरों के नाम जिनको आप लोगों ने इस पिछले 4 सालों में आपने ऑफ एयर कर दिया है। कहते हैं ये पाकिस्तान में आज तक नहीं हुआ। देखिए, जब इस किस्म का जुल्म, जिस जगह पे अदालत माजूल हो जाए कि अदालत आपके कहने पर क्या कह सकते हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन आपकी मर्जी पे कर रहा हो, जब सियासत आपकी मर्जी से चल रही है हो, तो आप इसके गिरने का इंतजार कर रहे हैं। नहीं गिरना ना, हमें तो पहले ही पता था कि गिर चुका है। देखिए, डिजीज जब स्टार्ट हो जाए ना, जो अच्छा डॉक्टर होता है, क्या करना चाहते हैं? देखिए, अगर आपने इस पूरे सिस्टम को ठीक करना है ना, तो आपने 2-3 काम करने। एक तो मैं हमेशा कहता हूं आपने सच बोलना है, ट्रूथ हमेशा, जो बिलाल भुट्टो ने भी कहा है, एग्री विद हिम, ट्रूथ इज द ओनली आंसर। और ये हर जगह पे हुआ, आपने से पहले सच बोलने के ये गलत क्या है, हमारे समेत, मैं अपने आप को इसमें से बरी नहीं कर रहा। उसके बाद आपने देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, और प्रॉब्लम वहां पे है जो ये कह रहे हैं, कहलवा रहे हैं। ठीक है, आपने इस सिस्टम के अंदर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाने, और फिर जो जीते उसको हुकूमत देनी है, ना कि जैसे भुट्टो को लेकर आए थे, वो जीता नहीं था, ले आए थे, बढ़ गई। उसके बाद आपने बगैर जमाती सिस्टम के एक और सिस्टम लेकर आए, आज तक हम भुगत रहे हैं। IPPs उनकी वजह से है, LNG उनकी वजह से है, कोल पावर प्लांट उनकी वजह से, 2.5 से 3 खरब रुपए हम हर साल उनके मकरूज हो जाते हैं, हर साल 2.5 से 3 खरब रुपए। और ये शुक्र करो इमरान खान ने डॉलर का रेट 148 पे कर लिया था, वरना आज 280 के लिहाज से होता। आप सोचो कितना होता। देखिए, इस जगह का फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस विद नो इंटरफेरेंस, तो मसला हल हो जाएगा। ये एकदम नहीं होगा, लेकिन आपको 1 या 2 टर्म्स में ये चीजें मसला हल हो जाएगा। और आपको लगता है कि 1-2 टर्म की स्पेस बची है जो मोहसिन नकवी साहब बात कर रहे हैं, उस हिसाब से तो लगता है बज़ाहिर कि अब इस सिस्टम में सकत ही नहीं बची है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मोहसिन नकवी साहब, मैं ऑनरेबल आदमी हैं, आपकी तरह इस एक बड़े चैनल के मालिक के, बड़ी जल्दी बन गए। मैं तो चैनल का मालिक नहीं, आप नहीं है, लेकिन आप भी बन सकते हैं, वो बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं ना, नोबडी कैन स्टॉप इट। ठीक है ना, सिर्फ आपने बात चीजें उसी तरह करनी है तो आप भी बन जाएंगे, उसको आइडियल बनाए बन जाएंगे आप। जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 30 साल का सफर 3.5 साल में कर लिया, मैंने नहीं कहा, राना साहब ने कहा। देखिए, उनसे विद ड्यू रिस्पेक्ट, जब वो कहते हैं ना छोटे छोटे जो प्रोविंसेस बना ले, उनसे पहले पूछ लें कि उसका साइज जो होगा PCB से छोटा होगा या बड़ा होगा, क्योंकि PCB तो चला नहीं, तो फिर आप कितने छोटे करेंगे। लेकिन एक और बात बता देता हूं, But you are in favor of administrative unity. इमरान खान का अपना वो है, उसने कहा है कि देखो, अगर आप मुझसे पूछते हो, मेरी जाती राय ये है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो डिवीजन लेवल है उस वक्त तक ले आओ, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है, ठीक है, उसमें जरूरी नहीं है, एक बात याद रखना, उस डिवीजन लेवल को आप बल्दियाती उनके निजाम के साथ उसको कोलाज कर सकते हैं कि जो डिवीजन यूनिट के ऊपर आप एक बल्दियाती यूनिट को आपस में वो कर लें, और उसमें जो हेड है वो उसको यूनिट करें, ना कि आप एक चीफ मिनिस्टर, एक गवर्नर, एक सारे आप अपने खर्चे ना करें, लेकिन आप उसको यूनिट को तो वो बना लें। तो वो यूनिट डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट चलाएं, आप कह रहे हैं? आप बिल्कुल डिवीजन लेवल की बनाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।